Hello everyone. In previous videos, we have seen Maxwell's equations for time varying fields as well as we have seen the equation of Maxwell's equation for the time constants fields. So we have seen the derivation and the theoretical portion up till now. But now in this video, we are going to see some of the numericals based on this Maxwell's equation. जनरली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एक तो थियरी क्वेश्चन रहेगा, you will be asked to derive the Maxwell's equation or one numerical will be asked based on this Maxwell's equation. So in this video we will see some numericals based on this Maxwell's equation. So before going for the numerical, let us revise the Maxwell's equation. I will revise the equation in point form. We have already seen the Maxwell's equation in point form and in integral form. So let us revise the formula in point form. So we have seen that the Maxwell's equation, right? The first equation we have seen, that is vector del cross vector H is equals to vector J plus del vector D divided by del T. ये पहला इक्वेशन था हमारे पास. The second Maxwell's equation हमने देखा हुआ है del cross vector E, that is equals to minus del vector B divided by del T. And third equation we have seen, that is del dot vector D is equals to rho V. Right? This is the third Maxwell's equation. And fourth Maxwell equation is del dot B, del dot vector B, that is equals to 0. To solve the numericals based on this Maxwell's equation, you must remember these four equations. Now, यहाँ पे अगर आप देख जाएंगे तो del cross vector H equals to vector J plus del vector D divided by del T. In some of the numericals, the conductivity will be given to you, that is equals to 0. कुछ न्यूमेरिकल में आपको कंडक्टिविटी अगर 0 देते हैं तो कंडक्टिविटी 0, इसका मतलब देयर इज नो करंट, करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो नहीं होगा तो जो करंट डेंसिटी है, इस करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 0 हो जाएगा. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना. तो जिस केस में कंडक्टिविटी आपको 0 दिया जाएगा, वहां पे J की वैल्यू आपको डायरेक्टली 0 लेना है. दैट मींस यू कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन एज वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर H इज इक्वल्स टू del vector D divided by del T. तो यहाँ पे आपको J की वैल्यू क्या कंसीडर करना है? 0 कंसीडर करना है. नाउ इन न्यूमेरिकल्स को पहले पढ़ लेते हैं. पहला न्यूमेरिकल देखते हैं. ये चार इक्वेशंस अच्छी तरह से रट लेना है आप लोगों को, और ये चार इक्वेशंस अगर आपको याद रहते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मैक्सवेल्स इक्वेशन. राइट? सो लेट अस गो एंड सी द न्यूमेरिकल फर्स्ट. नाउ सी व्हाट इज गिवन. सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू आपको निकालना है. राइट? सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ k such that each of the following pairs of fields satisfies Maxwell's equations in the region where sigma is equals to 0. देखिए यहाँ पे sigma equals to 0 दिया है. sigma 0 दिया है तो डायरेक्टली समझ जाना कि यहाँ पे J की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 0. राइट? एंड rho v is equals to there, that is वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है 0. ये दो वैल्यूज भी आपको दिया हुआ है. Now see what is given. एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है. वेक्टर E is equals to kx minus 100t into unit vector ay volts per meter, and वेक्टर H भी आपको दिया हुआ है x plus 20t into unit vector az amperes per meter. Along with it, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.25 हेनरी पर मीटर, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू भी दिया है आपको 0.01 फैराड्स पर मीटर. ये फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे. इन्होंने बोला क्या है, फिर से एक बार पढ़िए. सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ k. राइट? यानी k की वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है या k की वैल्यू आपको फाइंड करना है, such that each of the following pairs of fields satisfies Maxwell's equation. तो उन्होंने बोला है कि ये जो पेयर ऑफ फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो पेयर दिया हुआ है, ये Maxwell's equation सेटिस्फाई करता है, ऐसे उन्होंने बोला है. और जिस कौन सी रीजन में, where sigma is equals to 0 and rho v is equals to 0. तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर E के इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो k की वैल्यू अननोन है जो हमको निकालना है. तो इस तरह के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान में रखिए. जो भी आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, फील्ड इक्वेशंस, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है क्या, ये पहले चेक कर लेना है. उसके लिए आपको पता है कि आपके पास इक्वेशंस है. राइट? मैक्सवेल्स इक्वेशन. कौन कौन से मैक्सवेल्स इक्वेशन है? ये चार मैक्सवेल्स इक्वेशन है हमारे पास. राइट? तो इसके ऊपर से कौन सा इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट.
आइदर जे की वैल्यू 0 हो जाएगी आपको, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 0 दिया है, तो जे की वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। तो यू कैन यूज डेल क्रॉस वेक्टर एच इक्वल टू डेल वेक्टर डी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये इक्वेशन। और ये दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, डेल क्रॉस वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेक्टर डी आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है वेक्टर डी इज नथिंग बट योर एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई, राइट। और दूसरे इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो वेक्टर बी क्या रहता है हमारे पास, वेक्टर बी इज नथिंग बट योर म्यू इनटू वेक्टर एच, राइट। तो म्यू और एप्सिलॉन दोनों आपको यहाँ पे दिया हुआ, यू कैन सी दिस, म्यू और एप्सिलॉन दोनों दिया है, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करता हूँ। देखिए वेक्टर एच आपको दिया हुआ है, और सॉरी वेक्टर ई और वेक्टर एच दोनों आपको दिया हुआ है। तो इस केस में आई विल फाइंड सुटेबल माय सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डेल क्रॉस वेक्टर ई इज इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन था दैट इज माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारे पास, डेल क्रॉस वेक्टर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय डेल टी। वेक्टर बी क्या रहता है हमारे पास, म्यू इनटू एच रहता है, तो माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ म्यू इनटू वेक्टर एच, राइट, ये रहता है हमारे पास। तो म्यू को मैंने बाहर निकाला, सो दैट्स व्हाई द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फैशन, इस फैशन में हम लिख सकते हैं, राइट। अभी इसको हमको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, राइट। अभी सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, डेल क्रॉस वेक्टर ई है, राइट। तो डेल क्रॉस वेक्टर ई का कौन सा कंपोनेंट दिया है, ई का अगर आप देखते हो तो ये है हमारे पास ई का कंपोनेंट जिसके साथ यूनिट वेक्टर ए वाई है। इसका मतलब ई का सिंपली y कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, ई वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। और h का कौन सा कंपोनेंट दिया है, h का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर az है, इसका मतलब h का z कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, राइट। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले राइट हैंड साइड बता देता हूँ, देखिए माइनस म्यू डेल बाय डेल टी ऑफ वेक्टर एच, वेक्टर एच क्या लिखेंगे अभी हम, सिर्फ z कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे हम hz इनटू az, where hz क्या रहेगा, x plus 20t, ये रहेगा हमारे पास hz की वैल्यू, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में डेल क्रॉस वेक्टर ई निकालना है, तो डेल क्रॉस वेक्टर ई कैसे निकालेंगे, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको किस तरह से लिखना है, डेल क्रॉस वेक्टर ई, तो क्या करोगे आप, यूनिट वेक्टर ax, यूनिट वेक्टर ay, यूनिट वेक्टर az, राइट। पहले रो में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। डेल यानी क्या रहता है हमारे पास, डेल ऑपरेटर इज डेल बाय डेल x, then del by del y and then del by del z, राइट। क्योंकि डेल क्रॉस वेक्टर ई है, इसलिए सेकंड रो में क्या करना है आपको, डेल के कंपोनेंट्स लिखना है, डेल के कंपोनेंट डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z। वेक्टर ई के कंपोनेंट्स कौन से हमारे पास, ex, ey और ez, राइट। ये इस तरह से पहले इसको एक्सपांड कर लेना है। फिर कौन सा कंपोनेंट दिया है, ओनली ey कंपोनेंट दिया हुआ है, ex और ez कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो ex और ez कंपोनेंट अगर नहीं है तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, ax into यूनिट वेक्टर ay into यूनिट वेक्टर az, देन सेकंड रो में डेल बाय डेल x, देन डेल बाय डेल y, देन डेल बाय डेल z, डेल बाय डेल z, लाइक दिस, ठीक है। और फिर तीसरे रो में क्या बचेगा, ओनली ey कंपोनेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 0 मिलेगा, यहाँ पे ey जैसे की वैसे, और ez कंपोनेंट भी हमारे पास 0 है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद आपको ये स्टेप मिलेगा, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ax यूनिट वेक्टर ax इज डेल बाय डेल y ऑफ 0 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ dz, ey डेल बाय डेल z ऑफ ey, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जस्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए राइट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर ax इनटू क्या मिल जाएगा आप लोगों को, दैट इज डेल बाय डेल y ऑफ 0, डेल बाय डेल y ऑफ 0 इज 0 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ ey, यानी डेल ey डिवाइडेड बाय डेल z, इस तरह से हो जाएगा, राइट। देन माइनस यूनिट वेक्टर ay, राइट, माइनस यूनिट वेक्टर ay, तो क्या करोगे, डेल बाय डेल x ऑफ 0 इज 0 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ 0 इज अगेन 0, माइनस 0, देन प्लस यूनिट वेक्टर az, यूनिट वेक्टर az क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल बाय डेल x ऑफ ey, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाय डेल y ऑफ ey, राइट, माइनस
डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो इज जीरो, राइट। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड जो ये डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपांड किया है मैंने इस तरह से। एक्सपांड करने के बाद देख लेना है कि राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म है हमारे पास, सिर्फ z कंपोनेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली z कंपोनेंट इज देयर। तो क्या करोगे, ओनली z कंपोनेंट को कंपेयर करना है, राइट। क्योंकि राइट हैंड साइड में z कंपोनेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करना है आपको, z कम, क्योंकि आपको x कंपोनेंट भी मिलेगा और z कंपोनेंट भी, y कंपोनेंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंप्लीटली जीरो आ रहा है, राइट। अगर EY को अगर आप देखते हो फिर से, ठीक है, अगर EY अगर आप देखते हो तो EY इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ x एंड t, बराबर है। सो देयर इज एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर EY यहाँ पे रख भी देते हो आप इक्वेशन EY का, एंड इफ यू डिफरेंशिएट EY विद रिस्पेक्ट टू z, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डेल बाय डेल z ऑफ EY कितना है हमारे पास, k इंटू एक्स माइनस 100t, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज नो टर्म ऑफ z, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली z वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे कुछ चीजें मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए नाउ z कंपोनेंट, तो अभी डेल बाय डेल x ऑफ EY, अभी यही कंपोनेंट क्यों लिया हमने, देखिए z कंपोनेंट क्यों लिया हमने, क्योंकि जब डेल बाय डेल x ऑफ EY रखोगे तो EY इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, राइट। तो इसलिए उसको आपको रखना है। तो ये जो टर्म आएगा, राइट, इसको मैं थोड़ा सा भी इरेज कर देता हूँ, स्पेस फ्री कर देता हूँ यहाँ से। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट स्टेप दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब डायरेक्ट स्टेप से जाना नहीं है, ठीक है। आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। पहले इसके ऊपर से ये लिखना है, इसके बाद में ये लिखना है, इसके बाद में आपको ये लिखना है। अभी यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ EY कितना है मेरे पास, EY है k इंटू एक्स माइनस 100t है, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर AZ ऑलरेडी है यहाँ पे, राइट। और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, माइनस म्यू, और डेल बाय डेल टी ऑफ HZ क्या है हमारे पास, HZ है x प्लस 20t, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर AZ। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अभी आप इसको डिफरेंशिएट अगर आप करोगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ kx टू x इज k, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने k, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 100t विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सिंपली kz मिलेगा, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, आई हैव टू डिफरेंशिएट द ब्रैकेटेड टर्म विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 20, और ये az ऑलरेडी है, और माइनस म्यू इनटू 20 az मिलेगा। सो देयरफॉर AZ will cancel on both sides, so therefore k is equals to, mu की वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को, mu is given to you, you can see mu is 0.25, right। तो 0.25 यहाँ पे वैल्यू रख दिया मैंने mu की, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये k की वैल्यू मिल जाएगी आपको -5 वोल्ट्स पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, जानबूझ के मैंने ये डायरेक्ट स्टेप दिया हुआ है, सो दैट अगर ये पीपीटी कोई डाउनलोड करता है और रेफर करने की कोशिश करता है तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसलिए आपने पैसे देके ये क्लासेस लगाया हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप सम वैल्यूज और सम स्टेप्स हियर इन दिस केस। लेकिन जब वीडियो देखोगे आप इसको नोट करते समय आपके कॉपी में ये नोट डाउन करके रख सकते हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। तो कोई भी इक्वेशन अगर आप लेते हो तो पहला इक्वेशन भी आप लेके, मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन भी अगर आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। आई हैव कंसीडर्ड द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उस केस में आपको डेल क्रॉस H लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एप्सिलॉन E लेना पड़ेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, वेक्टर D और वेक्टर B दोनों दिया हुआ है, राइट। ये पेयर दिया हुआ है वेक्टर D और वेक्टर B का, और म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 बोला है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। और यहाँ पे k की वैल्यू आपको निकालना है, k कहाँ पे, इफ यू सी हियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर D में, राइट। आप वेक्टर D देख सकते हो, वेक्टर D में आपका k दिया हुआ है और इस k की वैल्यू आपको निकालना है, राइट।
तो यहाँ पे डी और बी के बीच का रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो कौन से दो इक्वेशंस फिट हो सकते हैं? अभी देखिए म्यू और एप्सिलॉन दोनों दिया हुआ है, लेकिन सबसे आसान वाला देखना है, राइट? सबसे आसान वाला अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट डेल डॉट वेक्टर डी अगर मैं लेता हूं तो ये इक्वल्स टू रो वी, और रो वी की वैल्यू दिया है आपको 0। इफ यू सी दिस न्यूमेरिकल, रो वी इज गिवन टू यू, इट इज इन द गिवन फील्ड। इसका मतलब जो डेल डॉट वेक्टर डी है, राइट, दैट इज डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 अगर मैं कर देता हूं, राइट, क्योंकि के आपका वेक्टर डी में है, तो इसलिए आप डायरेक्टली डेल डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0 भी अगर आप यूज करते हो तो भी आसानी से आपका काम हो जाएगा, राइट। तो देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये दो फील्ड्स आपको दिए हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने डेल डॉट वेक्टर डी इक्वल्स टू रो वी, ये हमारे पास ओरिजिनल मैक्सवेल्स इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन, रो वी की वैल्यू आपको 0 दिया है, इसलिए 0 दिया हुआ है। Now what is this del dot vector d? That is nothing but the divergence of vector d, divergence of vector d। और वेक्टर d दिया हुआ है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या करेंगे हम, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑलरेडी इन यूनिट नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस डाइवर्जेंस फॉर्मूला, अलग अलग डाइवर्जेंस फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, राइट। तो इफ यू रिमेंबर, if you memorize this formula, you will find that this del dot vector d can be given in Cartesian coordinate system as del y del x of dx, then del y del y of dy plus del y del z of dz। Simply dx, dy और dz की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अभी dx यानी क्या, वेक्टर d में जो यूनिट वेक्टर ax के साथ रहेगा, that is nothing but your dx, right? यूनिट वेक्टर ay के साथ जो टर्म रहेगा, that is nothing but your dy, एंड यूनिट वेक्टर az के साथ यहाँ पे az चाहिए, राइट, यूनिट वेक्टर az के साथ जो टर्म रहेगा वो रहेगा हमारे पास kz। तो dx, dy और dz की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, राइट। वंस यू विल पुट डिफरेंशिएट दिस, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट 5x विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5। नाउ सेकंड टर्म वी हैव टू डिफरेंशिएट -2y रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे मिलेगा आपको -2 प्लस थर्ड टर्म kz को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे मिलेगा आपको k। तो इसके ऊपर से 5 minus 2 is 3, so 3 plus k, therefore k is equals to -3। और यहाँ पे माइक्रोकूलम पर मीटर क्यूब क्यों आया हुआ है, क्योंकि d में देखिए माइक्रोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर था, तो हर एक इसमें आप 10⁻⁻6 ऐड कर सकते हो, तो फाइनली ये भी 10⁻⁻6 आएगा। तो 10⁻⁻6 इज नथिंग बट योर माइक्रोकूलम्स पर मीटर क्यूब, राइट। सो ये इस तरह से आप मैक्सवेल्स इक्वेशन का यूज करके आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यू हैव टू स्मार्टली चूज व्हिच मैक्सवेल्स इक्वेशन यू हैव टू यूज। सभी मैक्सवेल्स इक्वेशन अगर आप एक एक करके चेक करने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप स्मार्टली चूज करते हो तो प्रॉपरली आपको k की वैल्यू फाइंड करने में आसानी जाएगी। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पे लगेगा, थोड़ा सा दिमाग जगह पे रखना पड़ेगा, तो यू कैन इजीली सॉल्व। बाकी कुछ भी नहीं है, मैक्सवेल्स इक्वेशन में डायरेक्टली वो फील्ड्स आपको रखना है, प्रॉपरली आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या नॉट डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस या क्रॉस प्रोडक्ट या डिफरेंशिएशंस अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करते हो तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।